Hello students, how are you? Today we are going to solve our exercise of chapter number 1. Let's start with the question number 1.11. The question is, silver crystallize in FCC lattice. If the age length of the cell is 4.077 into 10 to the power minus 8 centimeter and density is 10.5 gram per centimeter cube, calculate atomic mass of silver. Right, we have to find out the atomic mass of that silver, means we have to find that m. Right, first what is given, that the age of length, means a is given, which is 4.077 into 10 to the power minus 8 centimeter. Right, the second given is density is equal to 10.5 gram per centimeter cube. Right, and also given the silver from FCC lattice, and for the FCC lattice the atom per unit cell is 4. See, now we having a formula, density is equal to Z into m divided by Avogadro number into a cube. Right, now here the density is given, we know the atom per unit cell. Right, we have to find out that molecular mass, Avogadro number, we know that the value for the Avogadro number, which is 6.022 into 10 to the power 23. Right, and a cube. So subtract the molar mass, which we have to find out, and rearrange the formula. You will get density into Avogadro number into a cube divided by Z. Right, the value of density is 10.5, value for the Avogadro is 6.022 into 10 to the power 23, and for the a is 4.077 into 10 to the power minus 8 and whole cube divided by 4. Now when you simplify that whole term, you will get 1071.25. Right, now here 10 to the power 23 and 8 3s are 24, which is in minus, so 23 minus 24, you will get 1071.25 into 10 to the power minus 1. So we can write that 107.125. Right, or we find out the molar mass, so we can write the unit for this is gram per mole. Right, now see the next question. Question number 1.12. A cubic solid is made of two elements, P and Q. Atoms of Q are present at the corners. Right, Q is present at the corner of the cube, and atoms P at the body center. Right, now what is the formula of the compound? What are the coordination number of P and Q? Right, what is given here? One cubic solid is made up by two elements, which are the P and Q. Q is present at the corners of that cube and P is present at the body center. Right, and we have to find out the formula for that compound. Right, so how we can find out? तो पहले तो हमें उनके numbers कितने होंगे per atom वो find out करने होंगे. So we can write that atoms Q are at the corners of the cube. Right, कि Q कहाँ पे present है? Corner पे present है cube के. So number of Q atoms पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? तो यूनिट सेल में कितने, हमारे क्यूबिक जो क्यूब होता है उसमें कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8, और ईच एटम हैविंग कंट्रीब्यूशन 1/8. तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्यू के कितने हो जाएंगे? 1. तो 1 एटम 1 क्यूब में क्यू का 1 एटम प्रेजेंट होगा टोटल. ओके, नाउ पी एटम्स are at the body center,
राइट जो बॉडी सेंटर है उसका तो पूरा एटम उसी यूनिट सेल का होता है, सो वी कैन राइट दैट, सो नंबर ऑफ p एटम्स पर यूनिट सेल वो कितने हो जाएंगे, तो 1 एटम, राइट। नाउ रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ p एंड q, तो कितना आएगा 1:1, राइट। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कितनी हो जाएगी pq। नाउ यहाँ पे बोला गया है कि क्यूब के कॉर्नर में है एटम प्रेजेंट और बॉडी सेंटर में, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका नेचर क्या है, बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है, सो ये। एंड इन द बीसीसी स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर of P and Q both are 8 for each, राइट। कि बीसीसी स्ट्रक्चर है और बीसीसी में जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आता है 8, तो यहाँ P एंड Q का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा 8। ओके, समझ में आ गया क्या करना है। पहले तो हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि पर यूनिट सेल में Q के कितने एटम है, P के कितने एटम हैं, फिर उसका रेशियो लेके हम उसकी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे Q कॉर्नर पे प्रेजेंट है, P बॉडी सेंटर में, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बीसीसी टाइप का है और बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 1.13। Niobium crystallize in a body center cubic structure. If density is 8.55 gram per centimeter cube, calculate atomic radius of niobium given that its atomic mass is 93 U, right? कि यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो डेंसिटी ऑफ दैट क्रिस्टल दी गई है, कितनी है वो 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। द सेकेंड थिंग इज गिवन दैट द एटॉमिक मास फॉर दिस नियोबियम इज 93 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। दूसरा हमें जो बोला गया है वो कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है, बीसीसी है, सही है। बीसीसी के लिए जो Z होता है वो कितना होता है 2, क्योंकि कॉर्नर्स के 8 एटम उसका 1/8, सही है। कॉर्नर्स के 8 एटम उसका 1/8 मतलब टोटल 1, और जो सेंटर है बॉडी सेंटर उसका 1 एटम मतलब टोटल कितने हुए 1 + 1 2 एटम हुए। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, राइट, कि जो एटम है उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस फाइंड आउट करने से पहले हमें एज फाइंड आउट करनी होगी, सही है। ये फाइंड आउट करने को बोला नहीं गया है, लेकिन बीसीसी के लिए हमें ए और आर का रिलेशन पता है। हम इजीली डेंसिटी की फॉर्मूला से फर्स्ट ऑफ ऑल ए काउंट कर सकते हैं और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दैट ए एज लेंथ हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ use the same formula, density is equal to Z into M divided by Na into E cube, right. Here we have to find out the age, so subtract that and rearrange the formula. A cube is equal to Z into M divided by Na into D, right. Now replace the value of Z, which is 2, right. The molar mass is given 93. Now Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23 and density is given 8.55, right. Now 8.55, so you will get, if you simplify that, you will get A cube is equal to 36.1 into 10 to the power minus 24 centimeter cube. Now we want A, so we have to find out the cube root of that. The cube root for this term is 3.3
304 into 10 to the power minus 8 centimeter, right? So you calculate the A. Now this cube root, you can find out the cube root by the help of calci and also by the help of log and antilog, right? Now we have to find out the radius for that atom, right? And for BCC, R is equal to under root of root 3 A by 4, राइट? ये जो बीसीसी के लिए आर और ए के बीच का रिलेशन है वो कितना आता है? आर इज इक्वल टू रूट 3 ए बाई 4, राइट? नाउ रूट 3 मीन्स 1.732. ए वी ऑलरेडी फाइंड आउट दैट विच इज 3.304 into 10 to the power minus 8 and divided by 4. So you will get 1.431 centimeter, right? If you want to convert that, यहाँ पे into ये रहेगा 10 to the power minus 8, right? If you want to convert that centimeter into picometer, nanometer, you can, okay? और इस सेंटीमीटर में भी रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, okay? अगर आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इट विल बी 143.1. यहाँ पे 2 डिजिट हम इस तरफ आएंगे तो इट विल बी -10 सेंटीमीटर और उसी के अकॉर्डिंग होता है 143.1 पिकोमीटर, ओके? तो पिकोमीटर में भी आप आंसर लिख सकते हो क्योंकि मोस्ट ऑफ जो रेडियस आती है वो पिकोमीटर में होती है उसी वजह से, और आप सेंटीमीटर में भी रहने दोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? ना द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.14. If the radius of the octahedral void is small r and radius of the atom in close packing is capital R, derive relation between the small r and capital R. क्या बोला गया है कि जब ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो रहा है तो हमें कैपिटल आर जो कि रेडियस ऑफ दैट एटम है और स्मॉल आर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन डिराइव करना है, ओके? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे फॉर्म होता है? तो एक ये एटम हो गया हमारा, ये दूसरा एटम हो गया, सही है, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, ओके? तो अब यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे आपको पता है एक एटम जो होता है उसके ऊपर होता है और एक एटम उसके नीचे से होता है, ओके? और ऐसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है. अब ये जो एटम है उसकी रेडियस हमें दी गई है आर, राइट? अगर आप देखो तो ए आर है, आर है, ए आर है, सही है, आर आर, ये सारी रेडियस है, सही है. ये रेडियस को ज्वाइन करके हमने एक स्क्वायर जैसा फॉर्म कर लिया, ओके? नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी तो आर है, सही है, ये भी आर है, और ये जो है यहाँ सेंटर है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो ये जो दोनों है वो रेडियस फॉर द स्मॉल आर है, सही है. तो ये जो मेजरमेंट हुआ ये वाला, हम उसे नाम भी दे देते हैं, चाहे तो पी ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओके? तो हमें पता है कि ये क्या स्क्वायर जैसा फॉर्म हो रहा है, तो उसका जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो क्या होगा? राइट एंगल फॉर्म होगा. सो वी कैन राइट दैट इन ट्राइंगल OPQ. अगर ये हमारा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है मतलब ये उसका हाइपोटेन्यूस हो गया, तो वी कैन राइट दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, राइट? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर, राइट? नाउ PQ की वैल्यू कितनी है? तो R प्लस R मतलब 2R स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू OP की वैल्यू कितना है? तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो R प्लस R होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R प्लस R होल स्क्वायर, राइट? नाउ वी कैन राइट दैट 2R स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो सेम टर्म है 2 बार, तो वी कैन राइट दैट 2R प्लस R स्क्वायर, राइट? नाउ दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, देन वी विल गेट 2R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2R प्लस R.
अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा, सो वी विल गेट √2r इक्वल टू r प्लस r। नाउ ये यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, इस वाले टर्म को यहाँ पे ले लेते हैं, देन वी विल गेट √2r माइनस r इज इक्वल टू 2। r कॉमन ले लेंगे, देन √2 माइनस 1 r इज इक्वल टू r। नाउ यहाँ पे √2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 r इज इक्वल टू r। देन वी विल गेट r इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.414 माइनस 1 हो जाएगा 0.414 इंटू कैपिटल R। तो ये हो गया हमारा स्मॉल r और कैपिटल R के बीच का रिलेशन। ओके, आई बात समझ में। यही चीज़ ऑक्टाहाइड्रल वॉल्ट की जगह टेट्राहाइड्रल वॉल्ट के लिए फाइंड आउट करनी होती। तो यहाँ पे 4 की जगह हमें कितने होते, 3 मॉलिक्यूल्स होते, 3 मॉलिक्यूल, सही है, एक ही प्लेन में, और वो क्या फॉर्म करते हैं, उसके ऊपर एक आ जाएगा तो टेट्राहाइड्रल वॉल्ट फॉर्म करेगा। तो उसी तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन स्मॉल r विच इज द रेडियस फॉर द octahedral void and capital R which is the radius for the atom. Okay, now the next question, exercise 1.15, which is copper crystallize into a FCC lattice with edge length 3.61 into 10 to the power minus 8 centimeter, so that the calculated density in the agreement with its measured value of 8.92 gram per centimeter cube. राइट, यहाँ पे क्या है, तो वी हैव टू फाइंड आउट जो दिया गया है। पहले तो एज दी गई है, एज लेंथ विच इज 3.61 इंटू 10 to the power minus 8. The density is given which is 8.92 into 9 gram per centimeter cube. Right, now here we have to find out, calculate density. Okay, calculate the density. We have to calculate density with agreement, मतलब कि ये जो है वो observed value of density दी गई है, and we have to find out the calculate value of that density. Okay, now A is given. Second thing, what is we know that copper, so the molecular mass for the copper is 63.5 gram per mole, right? And here for the FCC crystal जो Z हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4. Now density is equal to Z into M divided by Na into A cube, right? Now Z is 4, M is 63.5 divided by 6.022 into 10 to the power 23 इंटू हो जाएगा हमारा A क्यूब कितना है 3.61 इंटू 10 to the power minus 8 होल क्यूब। सही, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो ये 4 इंटू 6.3.5 डिवाइडेड बाई ये टर्म और इस वाले टर्म को 3 बाई डिवाइड करना है, देन यू विल गेट 0.8965। यहाँ पे जो है 23 है, यहाँ पे -24 आएगा तो -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +1। सो यू कैन राइट दैट 8.965 जो डेंसिटी हो गई हमारी कितनी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। राइट, नाउ यहाँ पे आपको सिर्फ दोनों के आपको जो कैलकुलेटेड मिली है वो 8.965 है, जो ऑब्जर्व्ड है वो ये है। सही है, तो हम लिख सकते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं, तो कैलकुलेटेड value of density is 8.97 gram per centimeter cube in agreement with observed value 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये दोनों सिमिलर जैसी है, मतलब कि राइट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालिसिस सो दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला निकल 0.98 ऑक्साइड, what fraction of the nickel exists as Ni+2 and Ni+3 ions। सही है, हमारे पास एक निकल का क्या है
फॉर्मूला है, कंपाउंड है, उसका अगर आप एनालिसिस के थ्रू पता चला कि जो निकल ऑक्साइड फॉर्म होता है उसमें निकल 0.98 है, और जो हमारा जो 0.98 है, तो हमें पता है कि जो निकल है वो एज अ Na+2 भी एग्जिस्ट करता है, Na+3 भी है। तो ये जो हमारा कंपाउंड दिया गया है निकल 0.98 ऑक्साइड में, सही है, उसमें Na+2 कितना है, Na+3 कितना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ Na+2 इक्वल टू x है। ओके, देन देयरफॉर द नंबर ऑफ Na+3 कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल 0.98 है, अगर Na+2 के x सपोज किए तो Na+3 के कितने हो जाएंगे, 0.98 माइनस x जितने हो जाएंगे। ओके, नाउ ये जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है वो तो इलेक्ट्रली क्या है, न्यूट्रल है, तो वी कैन राइट दैट फॉर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगा, तो इसका टोटल चार्ज और इसका टोटल चार्ज, उसका जो है अगर आप एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। सो यहाँ पे जो Na+2 है वो कितने हैं, x, और उसका चार्ज है +2, प्लस Na+3 है 0.98 माइनस x, और उसका चार्ज है +3, सही है, माइनस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन है 1, उसका चार्ज है -2, और टोटल है 0। ओके, नब यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 0.98, ये ब्रैकेट हम ओवर कर देते हैं, 0.98 इंटू 3 माइनस 3x, यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। ओके, चलो अब ये 2x है, ये -3x है, तो -x बच जाएगा, और इन दोनों को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 2.94, यहाँ पे -x, ये दो इस तरफ ये -2 इक्वल टू 0। चलो ये x को इस तरफ ले जाते हैं, देन x पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 2.94 -2, देयरफॉर द x विल बी 0.94। ओके, मतलब अगर 0.98 हमारे पास टोटल निकल है, उसमें से 0.94 क्या हो जाएगा हमारा, तो Na+2, क्योंकि उस x किसके लिए हमने सपोज किया है, Na के लिए। अगर उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, देन वी कैन राइट दैट इन 0.98 Na+2 is equal to 0.94. Therefore, in 100 Na+2, यहाँ पे निकल ऑक्साइड लिख लेते हैं, निकल ऑक्साइड, nickel, only nickel, not oxide. Okay, in 0.98 nickel Na+2 is 0.94, then in 100 nickel Na+2, 100 निकल में Na+2 कितने हो जाएंगे, सो 0.94 डिवाइडेड बाई 0.98 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हो जाएंगे 96% Na+2 होंगे हमारे जो सब्सटेंस है उसमें, तो Na+3 कितने हो जाएंगे, therefore Na+3 will be 4%, सही है, वो कितने हो जाएंगे, 4% हो जाएंगे। ओके, डू यू गेट इट? Hope you understand all the question which we solved in this lecture. If there is any query, you can ask me by the comment. Okay, thank you.